السلام علیکم 4TV خبرنامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پرانے شہر کے بی بی کا چشمہ علاقے میں ایک شخص پر دن دہاڑے قاتلانہ حملہ آور فائرنگ کرنے کے بعد فرار۔ علی باغ میں 16 جون کو ہوئے قتل کا معمہ حل، روڑی شیٹر اشفاق اور اس کا بھائی گرفتار۔ آئندہ سال تک ریاست میں برقی کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا، آئی ٹی کمپنیوں کو چیف منسٹر کی یقین دہانی۔ اور جگن کے خلاف تحقیقات، کانگریس، ٹی ڈی پی اور سی بی آئی کی سازش، وائسار کانگریس کے ارکان اسمبلی کا احاطہ اسمبلی میں دھرنا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پرانے شہر کے علاقے بی بی کا چشمہ فلک نما میں ایک شخص پر فلمی انداز میں دن دہاڑے فائرنگ کرنے کے بعد نامعلوم افراد فرار ہو گئے۔ فائرنگ کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 25 سالہ محمد منظور ساکن قاضی پورہ شدید زخمی ہو گئے، جنہیں نمس ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلک نما پولیس اسٹیشن کے حدود میں پیش آئے اس واقعے کے بعد پورے ساؤتھ زون میں پولیس متحرک ہو گئی ہے۔ اطلاع ملتے ہی ڈی سی پی ساؤتھ زون ڈاکٹر اکن سبروال مقام واقعہ پہنچ گئے۔ انہوں نے فورنسک ماہرین کی ٹیم کو وہاں طلب کیا۔ پولیس مختلف زاویوں سے اس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ پولیس کے مطابق شالی بنڈے میں محمد منظور کی فرنیچر کی ایک دکان اور ہوٹل ہے۔ وہ سپہر سی بی زیڈ موٹر سائیکل پر وٹے پلی بی بی کا چشمے کے پاس سے گزر رہے تھے کہ ان کا تعاقب کرتے ہوئے یہ فائرنگ کی گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ انہیں ایک گولی لگی ہے۔ حملہ آور کون تھے اس کا پتہ فی الحال نہیں چل سکا۔ ڈی سی پی ساؤتھ زون اکن سبروال نے حملہ آوروں کی تلاش کے لیے 4 ٹیمیں تشکیل دی ہیں۔ ابتدائی تحقیقات میں پتہ چلا ہے کہ 1 سال قبل ابوبکر نامی شخص کے قتل کی جو واردات پیش آئی تھی، اس کا بدلہ لینے کے لیے منظور پر یہ حملہ کیا گیا ہو۔ فلک نما پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ کالا پتھر پولیس نے 16 جون کو علی باغ میں نثار نامی نوجوان کے قتل کے معاملے کو حل کرتے ہوئے علی باغ کالا پتھر کے ساکن روڑی شیٹر اشفاق اور اس کے بھائی عمران کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ اشفاق اور عمران نے نثار پر قیصر گینگ کو ان کے بارے میں اطلاعات فراہم کرنے کا شبہ کرتے ہوئے چاقوؤں سے حملہ کرتے ہوئے قتل کر دیا تھا۔ پولیس نے بتایا کہ اشفاق پر شہر کے مختلف پولیس اسٹیشنوں کے حدود میں 32 مقدمات درج ہیں، جبکہ عمران پر کالے پتھر پولیس اسٹیشن کے حدود میں 4 مقدمات ہیں۔ پولیس نے دونوں ملزمین کے قبضے سے ایک دیسی ساختہ تفنچا، ایک گولی اور 2 چاقوؤں کو ضبط کر لیا ہے۔ شہر میں پولیس اور انتظامیہ کی لاپرواہی سے جرائم کی شرح میں اضافہ ہو رہا ہے۔ ملک پیٹ میں 1 سال سے بند جوئے کا اڈا دوبارہ کھل گیا ہے، اور ادھر پرانے شہر میں آئے دن سنگین جرائم پیش آ رہے ہیں۔ پیش ہے اس سلسلے میں ایک تفصیلی رپورٹ۔ ملک پیٹ میں گزشتہ 1 سال سے بند جوئے کا اڈا دوبارہ کھل گیا ہے۔ تفریح کے نام پر قائم سیلیبریٹی کلب میں بڑے پیمانے پر جوئے کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، جہاں یومیہ لاکھوں روپے کا جوا کھیلا جاتا ہے۔ آوارہ قسم کے نوجوان اپنے والدین اور سرپرستوں کی محنت سے کمائی گئی پونجی ان اڈوں میں اڑا دیا کرتے ہیں۔ 1 سال قبل متعلقہ رکن اسمبلی احمد بلالہ نے اس اڈے کو بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر احتجاج کیا تھا اور اسمبلی میں بھی آواز اٹھائی تھی۔ اس کے بعد پولیس نے جوئے کے اس اڈے کو بند کروا دیا تھا، لیکن اب یہ دوبارہ کھل گیا ہے۔ موجودہ غیر یقینی سیاسی صورتحال کی وجہ سے حکومت اور پولیس کی نظم و نسق مجرمین پر گرفت کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہے، کیونکہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران قتل، اقدام قتل، چوری، ڈکیتی وغیرہ کی وارداتوں میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے۔ پرانے شہر میں بھی قتل کی وارداتیں پیش آ چکی ہیں۔
चंद रोज कबल एक नौजवान को खतर जाने से एक रोज कबल बेदर्दी से कत्ल किया गया। याकुतपुरा के एक ताजिर को कुछ रोज कबल चंद्रानगुट्टा में कत्ल किया गया। वट्टेपल्ली के इलाके में दिन दहाड़े फायरिंग का वाकया पेश आया है और अब जुए के अड्डे दोबारा आबाद हो गए हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि हुकूमत जानबूझकर शहर में गैर अखलाकी व गैर समाजी सरगर्मियों को बढ़ावा दे रही है। बिलखुसूस पुलिस की गिरफ्त भी कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। हिस्सा समझे जाने वाले हमारे शहर में बोनाल व गणेश त्योहार इंतहाई करीब हैं। ऐसे में हुकूमत की नरमी और पुलिस की गफलत से अशरार के हौसले बुलंद हो सकते हैं। सनती शोबे के मसाइल की यकसुई के लिए मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले ओहदेदारों पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी ने AP एडवांटेज IT कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए ये बात कही। वज़ीर आला ने IT कंपनियों के नुमाइंदों के साथ दो बदू बातचीत की। उन्होंने IT कंपनियों के नुमाइंदों को बताया कि आंध्र प्रदेश सरमायाकारी के लिए एक मौजूद मुकाम है, क्योंकि यहाँ पर कम बरकी शरहों के अलावा दीगर मादी वसाइल और काबिल अफरादी क़ुव्वत भी दस्तियाब है। किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि हुकूमत की जानिब से देही इलाकों में IT के फ़रोग़ के लिए कोशिशें जारी हैं। उन्होंने बताया कि हुकूमत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को IT से मरबूत करना चाहती है, क्योंकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता 1 करोड़ 40 लाख खवातीन को अपनी कारकर्दगी बेहतर बनाने में मदद मिल सकेगी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि मी सेवा प्रोग्राम को अनकरीब रियासत भर में तोसी दी जाएगी। उन्होंने IT कंपनियों को यकीन दिलाया कि आइंदा साल बरकी का कोई मसला नहीं रहेगा। चीफ मिनिस्टर ने IT शोबा आम आदमी की तरक्की में मुआविन करार दिया। इस मौके पर मरकजी वजीर सचिन पायलट ने कहा कि IT शोबे को पंचायत सतह तक ले जाने के लिए मरकजी हुकूमत ने 20 करोड़ रुपए जारी करने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि देही सतह के नौजवान भी IT शोबे में दिलचस्पी ले रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हिंदुस्तान आइंदा 2 या 3 सालों में दुनिया का बड़ा IT मुल्क बन जाएगा। वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी और सदर प्रदेश कांग्रेस कमेटी B सत्यनारायणा को दिल्ली तलब किया गया है। इम्कान है कि चीफ मिनिस्टर और PCC सदर जुमे की सुबह दिल्ली रवाना होंगे। ज़िमन इंतखाबात के नताइज और सदर जमहूरिया के इंतखाब की हिकमत अमली पर दोनों कायदीन की पार्टी आला कमान से बातचीत का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। रियासती वजीर ट्रांसपोर्ट B सत्यनारायणा ने कहा है कि रियासत में पेश आए हालिया सड़क हादसात के लिए ओहदेदार जिम्मेदार नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि रियासत में जुमला 20 ता 21,000 स्कूल बसें हैं, जिनमें से 14,000 बसों के फिटनेस सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि यकुम जून को फिटनेस की मियाद मुकम्मल हो चुकी है और मजीद 7,000 बसों की फिटनेस की जांच होनी बाकी है। सत्यनारायण ने बताया कि हालिया चंद दिनों में किए गए धावों के दौरान स्कूल की 202 बसों को जब्त किया गया, जबकि खानगी ट्रेवल्स की 130 गाड़ियों को भी जब्त किया गया। वजीर ट्रांसपोर्ट ने बताया कि शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों की जांच के लिए टूल गेट्स पर खुसूसी टीमों को मुतय्यन किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि RTC में भी अगर फिटनेस के बगैर बसें चलाई गई तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बोत्सा ने YSR कांग्रेस पार्टी के अरकान असम्बली की जानिब से असम्बली के अहाते में दिए गए धरने की मजम्मत की और कहा कि अगर जगन के खिलाफ जारी कार्रवाई से जगन की जिंदगी को खतरे का अंदेशा है तो CBI और हाईकोर्ट के पास धरना दिया जाना चाहिए, क्योंकि गांधी के मुजस्समे के पास धरना देने से कुछ हासिल नहीं होगा। గత 3 రోజుల్లో తనిఖీ చేసిన వాటిలో 130 వరకు ఇప్పటికి ఈ రోజు వరకు సీజ్ చేయడం జరిగింది। వాటినన్నిటినీ కూడా తనిఖీలు చేసి వాటిని అదుపులో తీసుకోవడం జరిగింది। వాటినన్నిటినీ కూడా చట్ట ప్రకారం చట్ట పరిధిలో కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేసి వారికి చట్టరీత్యా చర్య తీసుకోమని చెప్పడం జరిగింది। रियासती हुकूमत ने महकमे मादनियात के प्रिंसिपल सेक्रेटरी D श्रीनिवासलू का तबादला करते हुए उन्हें मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का सदरनशीन और MD मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में हुकूमत की जानिब से अहकाम जारी कर दिए गए। इंटरमीडिएट साल अव्वल के एडवांस सप्लीमेंट्री इम्तिहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया। मजमूई नतीजा 68.14% रहा। जिले कृष्णा 82.66% नतीजे के साथ पहले मुकाम पर रहा, जबकि महबूब नगर
51.1% नतीजे के साथ आखिरी मकाम पर रहा। लड़कियों का नतीजा 71.52 और लड़कों का 65.42% रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्लेटफॉर्म से ही हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीदें की जा रही हैं। गांधी भवन में जुमेरात को मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस लीडर के विद्याधर राव ने हुकूमत की कारकर्दगी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था कि सेहतमंद सियासत के लिए सिर्फ अपोजिशन की तनकीदें काफी नहीं, बल्कि नकायस और खामियों को दूर करने के लिए हकायक का पेश करना भी जरूरी है। विद्याधर राव ने किसानों के मसाइल का जिक्र करते हुए कहा कि किसानों को कर्जजात, खाद, तुख्म और खवलदार किसानों को अहलियती कार्ड्स की इजराई के सिलसिले में मौसर इक़दामात नहीं किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत के गैर मौसर इक़दामात से किसी को भी फायदा नहीं हो रहा है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली ने जगनमोहन रेड्डी के खिलाफ जारी तहकीकात को कांग्रेस, तेलुगु देशम और सीबीआई की साजिश करार देते हुए असेंबली के अहाते में एहतजाजी धरना दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान ने जगन को नार्को टेस्ट के जरिए हरासा करने की साजिश के खिलाफ भी शदीद बरहमी जाहिर की। नौ मुंतखबा अरकान असेंबली के अहाते में एक दिन की भूख हड़ताल के लिए पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने 15 अरकान असेंबली को गिरफ्तार करते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अरकान असेंबली की जानिब से किए गए इस एहतजाज में पार्टी के दीगर हामी भी शामिल हो गए और हुकूमत और सीबीआई डाउन डाउन के नारे लगाने लगे। इस मौके पर वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की जानिब से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि आंध्र प्रदेश में रियासती हुकूमत पुलिस को और मरकज में यूपीए हुकूमत सीबीआई को इस्तेमाल करते हुए रियासत में खौफ का माहौल पैदा कर रही है। बयान में मजीद कहा गया है कि जगनमोहन रेड्डी को बेबुनियाद इल्जामात के तहत निशाना बनाया जा रहा है और पुरसा यात्रा के आगाज के साथ ही जगन के खिलाफ साजिशें शुरू कर दी गई थीं। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 3 साल से हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया है। हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं का मुल्क नहीं है। मीडिया से बात करते हुए साबिक वजीर शंकर राव ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में 65% आबादी जरूर हिंदुओं की है, लेकिन यहां अक़लियतें भी आबाद हैं। वज़ीर आज़म के ओहदे से मुताल्लिक़ आरएसएस सरबराह मोहन भागवत के बयान की शदीद मजम्मत करते हुए शंकर राव ने कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्युलर मुल्क है और मोहन भागवत का ख्याल तमाम हिंदुओं के ख्यालात की तर्जुमानी नहीं हो सकता। सेक्युलर वज़ीर आज़म से मुताल्लिक़ बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार के बयान की शंकर राव ने सताइश की। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी की भी सताइश करते हुए कहा कि 2002 गुजरात फसादात के दौरान वाजपेयी ने नरेंद्र मोदी को हटाने का इरादा कर लिया था। उन्होंने कौमी सलामती के साबिक़ मुशीर ब्रिजेश मिश्र को आरएसएस की ज़हनियत से दूर रहने का मशवरा दिया। शंकर राव ने पीएस संगमा को भी सदर जमहूरिया के इंतखाब की दौड़ से दस्तबरदारी इख्तियार करने का मशवरा दिया। आरएसएस चीफ ఎవరైతే ఉన్నారో భారతదేశానికి హిందూ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి అనే పదాన్ని ఉపయోగించి మాట్లాడడం జరిగింది, మీడియాలో వచ్చింది, దానిని నేను ఖండిస్తా ఉన్నా। खबरनामे में खबरों का सिलसिला जारी है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।